Welcome back, everybody. This is our 11th class in JEE Mains previous year questions for chapter Electrostatic Potential and Capacitance of class 11. This is a subtopic of the chapter Electrostatics of class 12th. Now, before this, we have made 10 videos in this series for this chapter, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for such videos. And we have also started similar series for NEET also, so you can go to our channel and can also find those videos out. And again, if you find these videos helpful, then do press the like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes in front of your screen and can donate with whatever amount, however small. It motivates us to keep on making such quality videos on regular basis. So with this, let's start today's video. And in previous video, we covered up to question number 85 or something. Yes, this was the last question. And today we are going with next question, or question number 86. So let me adjust pen width slightly, and here it is. So a parallel plate capacitor is made of two circular plates separated by a distance of 5 millimeter. So distance is 5 millimeter. And dielectric constant K is given. So K is 2.2. When the electric field value is also given, 3 into 10 raised to power 4. The charge density of the positive plate will be close to. So we have to find out the charge density of the system. So for charge density, we have to find charge density is given by charge by area, and we know that Q is equal to CV. So CV by area, and we know C is epsilon node A by D into, here we have potential and here we have area. So area से area cancelled हो जाएगा, and we get with epsilon node into V by D, and we know that E is equal to VD, sorry, not E is V by D and V is equal to ED. So V by D is equal to E, so this becomes E into epsilon node. Now value of E is 3 into 10 raised to power 4, and epsilon node, and यहाँ पे हमें K भी लेना पड़ेगा साथ में, before what, because शीट भी है यहाँ पे डालेगी तो साथ में K आएगा, और यहाँ पे भी साथ में K आएगा. सो एप्सिलॉन नोड की वैल्यू पुट कर देते हैं -12, और साथ में जो K है दैट इज 2.2 यहाँ पे हम एंटर कर देंगे. और जब इनको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, ये आता है 5.88 इंटू 10 रेज टू पावर -7, और जो कि हमारा नियरेस्ट मैच करेगा 6 इंटू 10 रेज टू पावर -7 के साथ. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So here the gap between the plates of a parallel plate capacitor of area A and dielectric and distance between the plates is D is filled with the dielectric whose permittivity varies from epsilon 1 at a plate 1 to epsilon 2 at other plates. So capacitance of the dielectric. So हमारे पास दो प्लेट्स हैं, और उन प्लेट्स के बीच में जो हमारा मटेरियल है, लेट मी ड्रॉ द प्लेट्स. सपोज ये हमारी फर्स्ट प्लेट है कैपेसिटर की, और ये दूसरी प्लेट है, और इनके बीच में जो हमारा मटेरियल है, द मटेरियल इज सच दैट कि उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरी करता है. पहली प्लेट पे वो एप्सिलॉन 1 है, और दूसरी प्लेट पे वो एप्सिलॉन 2 हो जाता है, और वो लीनियरली वेरी करता है. मींस एप्सिलॉन 1 टू एप्सिलॉन 2 वो लीनियरली वेरी करता है ओवर द डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे वो वेरी करता है एप्सिलॉन 1 टू एप्सिलॉन 2. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक रिलेशन बनाना होगा एप्सिलॉन के लिए, कि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे डी डिस्टेंस बीच में कहीं पे कोई पॉइंट ले लेते हो, कि सपोज हम यहाँ पे बीच में एक पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे ले लेते हैं पहली प्लेट से, तो इस डिस्टेंस पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी. सो फॉर दैट
हम रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं दैट एप्सिलॉन इज, मिनिमम वैल्यू है एप्सिलॉन 1 प्लस जो दोनों का डिफरेंस होगा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1, उसको d से डिवाइड करके x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट्स हाउ ये हमारे पास एक एप्सिलॉन के लिए बेसिक रिलेशन बन जाएगा। सो अब हमें ये निकालना है कि जो प्लेट है, कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगा। सो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय क्यू बाय वी, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है हमारे पास। सो यहाँ पे हम इसको क्यू बाय वी लिखेंगे एंड फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं आगे, जो क्यू है क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स ए बाय वी, जहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और ए हमारे पास यहाँ पे एरिया है प्लेट एंड वी इज द पोटेंशियल। सो व्हाट वी डू, पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं सिस्टम के लिए और फिर उसके बेसिस पे हम आगे की कैलकुलेशंस करेंगे। नॉर्मली जो कैपेसिटर के लिए आप डेरिवेशंस करते हैं उसके लिए भी हम पोटेंशियल ही कैलकुलेट करते हैं। नाउ सपोजिंग कि आप कोई पॉइंट लेते हो यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे एक्स ही पॉइंट ले रहे थे, कि उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास ई है और हम यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर पोटेंशियल हम ड्राइव करने लगे, वी नो दैट ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर होता है और नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पे हम एक्स ओनली वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं। सो इट विल बी माइनस डी वी बाई डी एक्स एंड फ्रॉम दिस डी वी विल बी नेगेटिव ऑफ ई डी एक्स, अभी हम इंटीग्रल नहीं ले रहे, ई डी एक्स। और अब हम दोनों साइड का यहाँ पे इंटीग्रल कर देंगे। जो x है वो 0 से d तक वेरी कर सकता है और जो v है dv है वो 0 से v वेरी करेगा, तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सो इस साइड सोल्व करेंगे तो हमारे पास v मिलेगा यहाँ पे माइनस, नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सो अब जो आपका ये कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, जो यहाँ के चार्जेस हैं उन चार्जेस पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे वैक्यूम हो, तो अगर यहाँ पे कोई मटेरियल ना हो या वैक्यूम हो, तो किसी बीच में पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ पे वैक्यूम हो। बट अगर यहाँ पे वैक्यूम ना हो और हम कोई मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट कर दें, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि जो हमारी फील्ड होती है वहां पे सिग्मा बाय के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। और यहाँ पे ये के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम ये एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले रहे होंगे। और आई थिंक ये हमें कंप्लीट के लिए ही एप्सिलॉन नोड के साथ के एप्सिलॉन नोड की जगह पे हमें यही लेना होगा, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि परमिटिविटी की बात की गई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात नहीं की गई, परमिटिविटी की बात की गई है। सो जो ये हमारा फॉर्मूला है इसको हम नॉर्मली इस वे में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज के टाइम्स एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू हम यहाँ से लेने वाले हैं। सो जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इंटीग्रल हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, इंटीग्रल 0 टू d सिग्मा बाय एप्सिलॉन की वैल्यू है हमारे पास एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 बाय d इंटू एक्स और बाय इंटू डी एक्स। सो नाउ ये हमारे पास यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लेके आ सकते हैं इंटीग्रल से। सो माइनस सिग्मा इंटीग्रल 0 टू d 1 बाय E1 प्लस E2 माइनस E1 बाय d इंटू एक्स और यहाँ पे इंटीग्रल dx। सो दिस इज 1 प्लस समथिंग टाइम्स x, ये इस टाइप का इंटीग्रल है हमारे पास, और इसको इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव सिग्मा एज इट इज ln ऑफ E1 प्लस E2 माइनस E1 बाय d इंटू एक्स और डिवाइडेड बाय जो इसका डेरिवेटिव होगा, और डेरिवेटिव हमें देता है E2 माइनस E1 बाय d, और यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी d से 0 तक की। नाउ अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ये d को इधर ले जाएंगे और ये E1 माइनस E2 हो जाएगा, माइनस साइन एडजस्ट कर लेंगे।
सो सिग्मा डी बाय E1 माइनस E2, लिमिट्स पुट करेंगे जो d एंड 0 है। तो जब d पुट करेंगे, x को d के इक्वल पुट करेंगे, सो d से d कट हो जाएगा, ये आएगा E1 प्लस E2 माइनस E1। सो E1 से E1 कैंसिल हो जाएगा और ये बचता है ln ऑफ E2। और जब 0 पुट करेंगे तो ये बचेगा ln ऑफ E1, सो माइनस ln ऑफ E1। और इन शॉर्ट जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट विल बी सिग्मा डी E1 माइनस E2 ln ऑफ E2 माइनस E1। ये हमारे पास रिलेशन बचता है किसके लिए? फाइनल रिलेशन बनता है पोटेंशियल के लिए। और ये हमारे पास कैपेसिटेंस था, दैट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय सिग्मा ए बाय पोटेंशियल, और हेयर इज पोटेंशियल। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सो कैपेसिटेंस का हमारा फाइनल फॉर्मूला विल बी क्यू बाय, सॉरी नॉट क्यू, सिग्मा ए बाय वी, और v की वैल्यू जो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की है ये है हमारे पास v की वैल्यू। एंड यस, लेट्स राइट। सो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, E1 माइनस E2 ऊपर आएगा, E1 माइनस E2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय d, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा ln E2 माइनस E1। और अब अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे, सो जो ऑप्शन डी है वो मोस्ट हमारा मैच होता है। यहाँ पे हमारा माइनस का डिफरेंस है, दैट हमारे पास E2 माइनस, यहाँ पे E2 माइनस E1 है, हमारा E1 माइनस E2 है, साथ में एरिया है, डिवाइड में D है ln, और यहाँ पे एप्सिलॉन नोड भी लिया गया है जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे रिमूव कर दिया था परमिटिविटी के रिगार्डिंग सोच के, कि हमने ये एप्सिलॉन की वैल्यू ये ली थी, बिकॉज यहाँ पे एप्सिलॉन ही मेंशन है, नोट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो आई थिंक यहाँ पे एप्सिलॉन नोड नहीं आना चाहिए था, बट सम अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन नोड लेके साथ में कंसीडर कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे पूरे के पूरे में साथ में एप्सिलॉन नोड मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस टर्म के साथ? इस टर्म के साथ। इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई एप्सिलॉन कर दें तो ये वाला रिलेशन हमारा बन जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो हेयर द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक whose डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K varies as per the relation K node plus lambda x। capacitance of the capacitor would be related to vacuum capacitance C node for this relation। तो हमें ये अब यहाँ पे रिलेशन बनाना है और इन शॉर्ट हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है इस कैपेसिटर के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। अगेन व्हाट वी डू, हम यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स बना लेते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि ये पॉइंट जो हमारा है ये x डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर वैक्यूम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड, और अगर वैक्यूम नहीं है, कोई मटेरियल इंसर्टेड है, तो सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नोड, जो जहाँ पे के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है। सो अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, दैट जो dv होगा दैट विल बी माइनस ई डी आर, एंड जो एक टर्म हम वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में फॉरगॉट कर गए और जिसकी वजह से हमारा माइनस साइन का प्रॉब्लम आ रहा था, वो अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब हम ये माइनस ई डी आर करते हैं और वी राइट लाइक दिस ई वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस ई डी आर। सो यहाँ पे ये जो लोअर पार्ट है वो इन्फिनिटी होता है और ये इन्फिनिटी से कोई फाइनाइट पॉइंट होता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आप इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट पॉइंट का लेते हो, उस सिनेरियो में ये नेगेटिव होता है। बट अगर आपका लोअर वैल्यू स्मॉलर हो और हायर वैल्यू बिगर हो, जैसे इस केस में जो लोअर वैल्यू है इनफाइनाइट है वो बिगर है और अपर लिमिट, लोअर लिमिट ज्यादा है और अपर लिमिट स्मॉल है, तो उस केस में यहाँ पे नेगेटिव होता है। अगर यहाँ पे रिवर्स कर दें हम a टू इंफिनिटी, तो ये नेगेटिव साइन रिवर्स हो जाएगा और ये हमारे पास ई डी आर 0 टू इनफाइनाइट आएगा। और यही हम यहाँ पे अभी कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही किया था कि जो हमारी लिमिट्स थी
वो 0 to D तक जा रही थी। सो दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आना था, जो हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। सो इसको पॉजिटिव कर दो, इसको भी पॉजिटिव कर देंगे, और जो हमारा यहाँ पे फाइनली रिजल्ट आना था, आई थिंक ये रहा रिजल्ट जो हमारा। तो यहाँ पे E2 माइनस E1 हो जाएगा, नेगेटिव साइन एडजस्ट होने की वजह से। सो इस रिलेशन का हम यहाँ पे अगेन यूज करने वाले हैं, और फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला इंटीग्रल तो हमें वी दे देगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। एंड यहाँ से हमारे पास हम 0 से स्टार्ट करेंगे और थिकनेस तक जाते हैं। थिकनेस जो है इट इज गिवन टू बी डी अज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज वेरिएबल है यहाँ पे। सो सिग्मा बाय के की वैल्यू, के वेरिएबल है, सो के नोड प्लस लैम्डा एक्स इनटू हमारे पास एप्सिलॉन नोड आएगा, और साथ में यहाँ पे डी एक्स आएगा, बिकॉज ओनली एक डायमेंशन में हमारे पास वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो आगे बढ़ते हैं। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 to D 1 बाय के नोड प्लस लैम्डा एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। और अगेन ये हमारा लोगरिथम टाइप का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा होगा। सो इट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड ln ऑफ के नोड प्लस लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे लैम्डा आएगा, और लिमिट्स हमारी पुट होंगी डी से 0 की। पुट करते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड और साथ में 1 बाय लैम्डा ln ऑफ, जब डी पुट करेंगे एक्स को, सो के नोड प्लस लैम्डा डी, के नोड प्लस लैम्डा डी, और जब 0 पुट करेंगे तो ये ओनली के नोड बचेगा, सो माइनस लैम्डा के नोड। सो ये हमारे पास यहाँ पे बेसिक रिलेशन बचेगा। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट सिग्मा बाय लैम्डा एप्सिलॉन नोड ln ऑफ के नोड प्लस लैम्डा डी बाय के नोड, और इसको लिखा जा सकता है फर्दर सिग्मा बाय लैम्डा एप्सिलॉन नोड ln ऑफ 1 प्लस लैम्डा डी बाय के नोड। सो ये हमारा यहाँ पे बन गया पोटेंशियल के लिए रिलेशन। अब हमें क्या करना होगा, अब हम वापस जाते हैं एंड वी फॉर्म द रिलेशन फॉर कैपेसिटेंस। वी नो दैट जो C होता है, C इज सॉरी नॉट C, Q इज इक्वल टू सी वी, और यहाँ से पोटेंशियल कैपेसिटेंस कम्स आउट टू बी Q बाय V, और जो Q होता है दैट इज सिग्मा टाइम्स एरिया, और बाकी की वैल्यू पोटेंशियल की हम निकाल चुके हैं, दैट इज सिग्मा बाय लैम्डा एप्सिलॉन नोड ln 1 प्लस लैम्डा डी बाय के नोड। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा एप्सिलॉन नोड ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी लैम्डा एप्सिलॉन नोड ए डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1 प्लस लैम्डा डी बाय के नोड। अब कंपेयर करते हैं इसको कॉपी करके, एंड पेस्ट। सो वी हैव लैम्डा एप्सिलॉन नोड, ओके। ये हमें सी नोड की फॉर्म में प्लॉट करना है इसको, कि सी नोड की फॉर्म में बनाना होगा। और सी नोड क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वैक्यूम के अंदर। सो सी नोड शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नोड ए बाय टी। सो हमारे पास एप्सिलॉन नोड भी है, ए भी है, तो यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई करते हैं, डी से डिवाइड करते हैं। सो एप्सिलॉन नोड ए बाय डी, दिस विल बी सी नोड, so this will become lambda C node into D by ln of 1 plus lambda D by K node.
सो लैम्डा डी सी नोड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो लैम्डा डी सी नोड डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1 प्लस लैम्डा डी बाय के नोड। सो जो ऑप्शन सी है हमारा, दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a parallel plate capacitor is made of two plates of length L, width W and separated by a distance D. A dielectric slab that fits exactly between the plates is held near the edges of the plate. It is pulled into capacitor by force. Force mentioned है where you use the energy of the capacitor when dielectric is inside the capacitor up to distance x. If the charge on the capacitor is q, then the force on the dielectric when it is near edge. तो ये बताना है कि जब आपका कैपेसिटर यहाँ पे नियर एज होगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है। सो नाउ वी नो दैट जो फोर्स है, फोर्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पे रिलेशन गिवन है दैट इट इज डी यू बाई डी एक्स। सो मीन्स एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना होगा। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम सेम इसी जो मेथड है या जो हमें यहाँ पे हिंट गिवन है इसी का यूज करते हैं और हम टू केसेस के लिए सोल्व करते हैं। पहला केस जब ये डाइलेक्ट्रिक हमारा अप टू एक्स डिस्टेंस तक यहाँ पे है, यानी कि विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, हम जो यहाँ पे दोनों केसेस में एनर्जी निकालते हैं और फिर उसका हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे और उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे या एक्स से डिवाइड कर देंगे। सो एनर्जी विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक कब होगी, जब ये प्लेट इसके इनसाइड होगी। तो उस सिनेरियो में जो हमारी एनर्जी होनी चाहिए, अगर हम चार्ज की फॉर्म में देखें कि इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू देन द फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक, तो हमें जब कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज क्यू है तो हमें उसके लिए फोर्स बताना है। तो चार्ज अगर हम चार्ज कांस्टेंट मान के चलते हैं, सो दैट विल बिकम क्यू स्क्वायर बाय 2 k टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और ये हमारे पास हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमें इसके रिगार्डिंग कुछ मेंशन नहीं है कि जो आपका ये कैपेसिटर है ये उससे कनेक्टेड है या नहीं, मींस ये सप्लाई से कनेक्टेड है या नहीं ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस। सो इनिशियली हम यही मान के चलते हैं कि ये पूरी होल प्रोसेस के दौरान ये पोटेंशियल या सप्लाई से कनेक्टेड है। तो अगर ये सप्लाई से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और उस सिनेरियो में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है तो जो चार्ज है डिपेंडिंग अपॉन डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के अंदर है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बाहर है, उसके डिपेंडिंग जो चार्ज है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और जो चार्ज का नॉर्मल फॉर्मूला होता है इट इज गिवन बाय सी वी, और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है और अगर आप सी को चेंज करते हो बाय इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, जो आपका नया चार्ज है क्यू डैश बिकम्स के टाइम्स सी वी। सो यहाँ पे विद डाइलेक्ट्रिक हम जो नया चार्ज है, न्यू वैल्यू ऑफ चार्ज लेके चलेंगे। So it will become k square c square v square by 2kc, एंड यहाँ पे c से c को हम कैंसिल कर सकते हैं और k से k को भी कैंसिल कर सकते हैं। सो इट विल बिकम k इंटू c इंटू वी स्क्वायर बाय 2। ये थी एनर्जी विद डाइलेक्ट्रिक, और एनर्जी जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक होगी हमारे पास दैट विल बी क्यू स्क्वायर बाय 2c, और जो क्यू होता है नॉर्मली दैट इज सी वी। सो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2c, यहाँ से हमारे पास आ जाता है हाफ सी वी स्क्वायर। सो जो कि हम चार्ज की फॉर्म में लेके चल रहे थे। नाउ जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय चेंज इन एनर्जी बाय चेंज इन डिस्टेंस। सो चेंज इन एनर्जी हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स की बात हो रही है। सो दोनों का अगर चेंज हम निकालें यहाँ पे, सो दिस के सी वी स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, सो दिस विल बी जो चेंज डेल्टा यू आएगा, दोनों से हाफ सी वी स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। सो हाफ सी वी स्क्वायर
और यहाँ पे आ जाएगा k-1, और फोर्स के लिए डेफिनेशन दी गई है कि आपको इसको x से वेरी करवाना है, सो यहाँ पे डिवाइडेड बाय x आएगा, और जो मैक्सिमम x की वैल्यू हो सकती है अगर हम प्रॉपर वे में करें तो x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे l हो सकती है, l तक जा सकता है, सो du by dx विल बी हाफ cv स्क्वायर k-1 बाय l। नाउ जो आपके आंसर्स हैं उनमें दो में k-1 आता है यहाँ पे और यहाँ पे, और बाकी में k आ रहा है, तो ये तो हमारे यहीं पे रिग्रेक्ट हो जाते हैं, और बाकी में चार्ज की फॉर्म में हमें आंसर को दिया गया है। सो चार्ज हम कैसे बना सकते हैं, चार्ज Q इज इक्वल टू CV है, सो यहाँ पे C से मल्टीप्लाई और C से डिवाइड कर देते हैं और ये हाफ नीचे आ जाएगा, सो दिस विल बी C स्क्वायर V स्क्वायर इंटू k-1 बाय 2l, और C भी नहीं है, सो C को पुट कर देते हैं एप्सिलॉन नोड A बाय D। नाउ CV स्क्वायर इज ये Q स्क्वायर के इक्वल होगा, सो this will become Q square k-1 d ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में होगा हमारे पास 2 लेंथ एप्सिलॉन नोड, और जो एरिया है, एरिया यहाँ पे क्या होगा, लेंथ इनटू जो विथ है, यहाँ पे एरिया इस शीट का आता है, और जो ये आपके पास ये शीट है, ये शीट कुछ ऐसे होती है, इसकी लेंथ L है और जो विथ है वो W है, सो एरिया विल बी LW। सो जब LW पुट करेंगे यहाँ पे तो L से L मल्टीप्लाई के L स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे W आ जाएगा। एंड अब अगर हम देखें सो ये जो ऑप्शन C है हमारा, ये राइटफुली मैच कर रहा है, सो हेंस दिस विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 capacitor each of 3 microfarad are provided, these cannot be combined to provide a resultant capacitance। तो ये बताना है कि 3 कैपेसिटर को जोड़ के आप इनमें से क्या नहीं बना सकते। सो अगर आपके पास 3 कैपेसिटर हैं 3 माइक्रोफराड के, अगर आप तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो बिकॉज तीनों इक्वल हैं तो रिजल्टेंट उनका 1/3 हो जाएगा, और 3 का 1/3 1 होता है, सो यस 1 माइक्रोफराड बनाया जा सकता है। नाउ गोइंग टू कि वेदर हम 6 बना सकते हैं या नहीं बना सकते। 4.5 हम बना सकते हैं, कैसे, अगर हम दो को सीरीज में लगा दें तो ये दोनों 3 और 3 हैं तो ये मिलके 1.5 देंगे, और इनके साथ एक 3 पैरेलल में लगा दें तो ये दोनों 1.5 देंगे, और ये 3 है उस पैरेलल में है तो ऐड हो जाएगा, तो 4.5 भी बन सकता है। नाउ गोइंग टू 2 और 6 की, क्या हम 2 और 6 फॉर्म कर सकते हैं। सो अगर हम तीनों को पैरेलल में लगाएं तो 9 होगा, तीनों को सीरीज में लगाएं तो 1 होगा। नाउ अगर हम दो को व्हाट वी मेक, अभी हम क्या करते हैं, हमने अभी दो को सीरीज में और एक को पैरेलल में लगाया था, अभी हम दो को पैरेलल में लगाते हैं, ये दो को हमने पैरेलल में लगा दिया और एक को सीरीज में लगाते हैं। सो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये तो दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगे तो 6 बन जाएगा, और ये सीरीज में 3 है और इन दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे तो 1/6 प्लस 1/3 होगा, सो 6 1 और ये 2, तो 3/6 यानी कि हाफ, और उसका इनवर्स हो जाएगा 2, यानी 2 भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हेंस जो ऑप्शन डी है इसको नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यही पूछा गया था कि कौन सा कैपेसिटर आप नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हैं। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग a separation between the plates D, plate area A and material with dielectric constant K has a capacitance C node। so जो C node है उसकी वैल्यू है हमारे पास K times epsilon node A by D। now 1/3 of the material is replaced by another material of dielectric constant 2K, so that effectively there are two capacitor, one with area 1/3 A and of dielectric constant 2K and other with 2/3 of A with dielectric constant K। if the capacitance of the new capacitor is C then C by C node। so ये हमारा पहले कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर था और इसके अंदर पूरे के अंदर हमने क्या फील्ड किया हुआ था, K मटेरियल फील्ड किया हुआ था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला।
नाउ अब क्या होता है कि इस कैपेसिटर के 1/3 एरिया में, मींस सपोज कीजिए ये टोटल एरिया है कैपेसिटर का, तो इसके 1/3 में डाल दिया जाता है 2K का मटेरियल, और जो रिमेनिंग है उसके अंदर हमारे पास रहता है K वाला मटेरियल। और जो ये दोनों कैपेसिटर हैं यहाँ पे, ये हमारे पास दोनों सीरीज में होंगे, ओ सॉरी नॉट सीरीज में, दोनों पैरेलल में होंगे। इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट ये हमारे पास 2K मटेरियल वाला कैपेसिटर हो गया, और ये हमारे पास K मटेरियल वाला कैपेसिटर हो गया। दोनों की थिकनेस सेम है, जस्ट इसका एरिया A/3 है और इसका एरिया 2A/3 है। तो दोनों पैरेलल में है, तो जो इफेक्ट नया कैपेसिटेंस होगा C, दैट विल बी, दोनों का सम हो जाएगा नॉर्मल अलजेब्रिक। सो इट विल बी 2K इंटू एप्सिलॉन नोड, इसके लिए कर रहे हैं हम 2K इंटू एप्सिलॉन नोड इंटू एरिया जो कि A/3 है, इंटू प्लेट के बीच का डिस्टेंस D, प्लस यहाँ पे K एप्सिलॉन नोड जो एरिया है अब 2A/3 है, इंटू प्लेट विथ जो कि D हो जाएगी। सो ऊपर और नीचे दोनों हमारे पास जो टर्म्स हैं वो सेम हैं। सो दोनों को ऐड करेंगे, 2 and 2 4 हो जाएगा, 4K एप्सिलॉन नोड A/3D। और अगर हम ये मैच करें K एप्सिलॉन नोड A/D, K एप्सिलॉन नोड बाय D, ये C नोड की वैल्यू है, सो दिस बिकम्स 4/3 ऑफ C नोड, एंड हमें C/C नोड कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 4/3। सो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। To establish an instantaneous current of 2 ampere through 1 microfarad capacitor, potential difference across the capacitor plate should be changed at the rate of, तो हमें ये बताना है कि अगर हमें करंट सेटअप करना है 2 एम्पियर का कैपेसिटर के अक्रॉस, जिसका कैपेसिटेंस हमारे पास अवेलेबल है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस रेट से चेंज होना चाहिए। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है V/T। नाउ हमें ये पता है कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के लिए क्यू होता है CV, और यहाँ से अगर V की वैल्यू निकालें तो ये आता है Q/C, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा T। सो Q/T होता है हमारे पास करंट, सो दैट इज I, और डिवाइडेड बाय C। करंट की वैल्यू हमें गिवन है 2 एम्पियर, और ये जो कैपेसिटर है दैट इज 1 माइक्रोफराड, सो 1 इंटू 10⁻⁻6, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6, जो कि ऑप्शन यहाँ पे C से मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कंडेंसर, यानी कि कैपेसिटर की बात हो रही है। A charge particle enters in the space between the plates perpendicular to the E. The path of the particle will be between the plates की पाथ कैसा होगा। ये आपका सपोज कीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर ये पॉजिटिव वाली प्लेट है और ये नेगेटिव वाली प्लेट है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसे, और हर जगह यूनिफॉर्म होगी, इक्वल होगी। नाउ ये बोला गया है कि अब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है, वो कैसे एंटर करता है, परपेंडिकुलर टू, चार्ज पार्टिकल एंटर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स परपेंडिकुलर टू E, मींस जो चार्ज पार्टिकल वो ऐसे एंटर करता है, चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे एंटर करता है। तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एंटर करेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सपीरियंस करेगा, तो सपोज उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज पार्टिकल के पास, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो नेगेटिव प्लेट की तरफ लग रहा होगा, और जो उससे उसके पास एक्सल जो फोर्स आएगा दैट विल बी Q टाइम्स E, जहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, मास टाइम एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाता है QE/m, और ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, ये x डायरेक्शन में होगा, बिकॉज फोर्स भी x डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ से अगर हम x के लिए इक्वेशन बनाएं दैट S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² होता है। सो जो अगर ओनली हम x की बात करें, सो x विल बी इनिशियल वेलोसिटी x डिस्टेंस में x डायरेक्शन में 0 थी,
प्लस एक्सेलरेशन दैट विल बी क्यू ई बाय एम, एंड यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा. सो एक्स विल बी क्यू ई बाय 2m इंटू टी स्क्वायर. नाउ सपोज कीजिए कि हम जो यहाँ पे ये बना रहे हैं, जो द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमें पूछा गया है, तो जो अगर टाइम के साथ पार्टिकल का पाथ देखा जाए तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे ऐसे कंसाइड कर जाएगा प्लेट के साथ. सो जो ये वाला पाथ होता है, और ये स्क्वायर टर्म भी इसी पाथ को डिनोट करता है, ये वाला पाथ हमारे पास पैराबोला का होता है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. एंड विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं. होपफुली जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कवर किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे अगेन. एंड वी आर थिंकिंग ऑफ completing this chapter in the next video. So for that, keep on press the bell icon and keep on watching our space for new videos. अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, सजेशन हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर देम. एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, and also if possible do make some donation by scanning this QR code. So with this again, thanks for watching, and we will meet in next video.